रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, इससे पहले हम लोगों ने लाइफ स्पान के बारे में देखा था और हमने कंटिन्यूटी एक टर्म्स आया था, वहाँ के बाद से रिप्रोडक्शन टर्म्स हमने लाया था कि कंटिन्यूटी टर्म इज मेंटेन्ड बाय द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। नाउ टुडे वी स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन। ओके, reproduction. What is reproduction? Firstly, we define the what is the reproduction. Reproduction is a biological process in which the organism give rise to young one, that is the offspring similar to itself. Okay, that is the definition of the reproduction. Okay, reproduction एक biological process है जिसमें जो कोई organism है अपने young one को यानी कि अपने offspring को या अपने बच्चे को जन्म देती है जो कि उसके पेरेंट्स की तरह समान होते हैं। Okay, so these are the definition of the reproduction. This reproduction process are here take birth, grow and mature. This reproduction comes after reproductive stage comes after a mature stage of the organism. Okay, now here three steps. After this completing three steps, then reproductive process become start. Okay, सबसे पहले जो है जो ऑर्गेनिज्म है वो बर्थ लेता है। बर्थ लेने के बाद उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। आफ्टर दे फाइनली दे मैच्योर फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड देन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस become starts and then the organism give rise to these are the cycle of the organism. Okay, now birth, growth and finally death. These are the cycle. How okay, death, organism take birth, after that they grow and development and become mature and they produce the young one, and after the lifespan become completed and they become done. तो ये जो प्रक्रिया है ये सभी प्रोसेस है। इस तरीके से जो कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके जो लाइफ साइकिल्स चलते हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। कोई ऑर्गेनिजम्स है जो बर्थ लेता है, बर्थ लेने के बाद जो है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद उसमें रिप्रोडक्शन की क्षमता आती है। देन उसके बाद जो दे प्रोड्यूस द यंग वन, वो जो है यंग वन को प्रोड्यूस करता है ताकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है स्पीसीज का मेंटेन होता रहे। उसके बाद जो है फिर जो फाइनली जितने जो भी बर्थ लिया है उसका जो लाइफ स्पान है वो कंप्लीट होने के बाद वो डेथ हो जाता है। फिर प्रक्रिया इसी तरह से चलता रहता है। न्यू यंग वन जो है वो बॉर्न होता है, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, फिर डेथ होता है। तो दीज आर द साइकिल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड दे कंप्लीट देयर ओन साइकिल इन दिस वे। क्लियर? नाउ रिप्रोडक्शन इज अ टू टाइप्स on the basis of the presence of single parents or double parents, involvement of the single parent or double parents. Okay, now reproduction are the two types. Which basis? Involvement of single parents and involvement of double parents, two parents. Okay, how? Let's see. One is the asexual reproduction and another is the sexual reproduction. Asexual reproduction, okay, and another is sexual reproduction. Here either single parent involved or two parent involved on the basis. Okay, now let's see the asexual reproduction and the sexual reproduction. Firstly we see the asexual reproduction. What is asexual reproduction and how asexual reproduction occurs in the organisms? That is the asexual reproduction mainly occurs in the
lower organisms, that is the mostly in the single celled organism, and lower plants also. Let's see the how. Firstly, we know the definition of the asexual reproduction. Here in the asexual reproduction, the organisms, okay, here in the single parents give rise to young one. Okay, there no fusion of the gametes. Only one parents give rise to young one, no fusion of the gametes. These are the asexual reproduction. Okay. Now various examples of the asexual reproduction. One is the hydra, one is the amoeba, yeast. So many examples of the asexual reproduction. Now let's see the examples of the asexual reproductions. Okay. In the asexual reproduction, the organisms give rise to young one, the single parents give rise to young one, which is similar to the parents, very similar to the parents. We can say that it is the exact copy of the parents. Okay, like जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं, उसके ऊपर जेरोक्स डाल दिया, कॉपी डाल दिया, उसके नीचे से बिल्कुल जस्ट जैसे पेज निकालते हैं, बिल्कुल जस्ट ट्रू कॉपी हो जाता है, जेरोक्स हम निकालते हैं. जस्ट लाइक वैसे ही लाइक दैट asexual reproduction. Similarly, the young one is very similar to the parents. We can say that it is the exact copy of the parents. Now here in the terms of the exact copy, here the biological term is used as a clone. Okay, here used as clone in the place of the exact copy. Okay, यहाँ पे क्या है कि asexual reproduction में जो पेरेंट्स है, यानी कि जो सिंगल पेरेंट्स है, यहाँ पे डबल पेरेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. दो पेरेंट्स यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट नहीं है. एक ही पेरेंट्स जो है वो गिव यंग वन को जो है बर्थ दे सकते हैं. तो इसी प्रक्रिया को जो है यहाँ कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है. इसी प्रक्रिया को asexual reproduction कहते हैं. asexual reproduction में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, वो जो यंग वन को बर्थ दे रहे हैं, तो उनके जो यंग वन होंगे वो बिल्कुल जो है अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल समान दिखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी दिखेंगे. और यहाँ पे जो एग्जैक्ट कॉपी है, बायोलॉजिकली टर्म में एग्जैक्ट कॉपी को क्लोन की भाषा में बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं. ओके, क्लोन का मतलब क्या हो गया कि so many organisms is present and we can't identify which one is different and not. Okay, all are similarly in morphologically and genetically also. Okay, यार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली सिर्फ हम बाहर से ही ऐसा देख रहे हैं कि सब समान लग रहे हैं, बट उसके हम अगर जेनेटिकली देखें तो वो कुछ अलग होगा, तो नहीं. यहाँ पे क्या होता है कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के तरह. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. लेट वी सी द एग्जांपल्स. नाउ द टर्म क्लोन, इट मीन्स कि बहुत सारे जैसे कि हमने बनाया, तो यहाँ पे आप देखिए डिफाइन कर पा रहे हैं कि कौन है. नहीं, इसको हम जेनेटिकली भी देखेंगे तो वी कांट डिटरमाइन कि ये जो है पेरेंट्स अलग है या नहीं है. बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, बिल्कुल क्लोन है, ये अपने पेरेंट्स का सिमिलर है. तो हम कुछ एग्जांपल इसी के थ्रू लेते हैं asexual reproduction में. तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं अमीबा का. वेरी बेसिक एग्जांपल है ये, स्टार्टिंग से बायोलॉजी में मतलब कि फर्स्ट क्लास से इवन होता है. तो अमीबा का एक डायग्राम बना रहे हैं, एक रफ डायग्राम है. ओके, इस तरीके से. तो जो यहाँ पे asexually reproduction होता है अमीबा में बाय द बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन. ओके, बाइनरी का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है डिवीजन, बाई का मतलब होता है टू, यानी कि जो एक ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिवाइड होकर के टू ऑर्गेनिजम्स बन जाए. तो इसी जो प्रक्रिया है इसको बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे ये डिवाइड्स होता जाएगा. इस तरीके से ये इस तरीके से सेल जो है ये डिवाइड होगा, इस तरीके से सेल डिवाइड हो जाएंगे. और फाइनली ये जो है ये टू अमीबा में ये
इस तरीके से 2 अमीबा में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या देखा हमने कि एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया, यानी कि 1 अमीबा डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल and lastly from the from one amoeba 2 amoeba is formed by the binary fission reproduction. Binary fission reproduction is the types of the asexual reproduction. Okay, now here it is a binary fission reproduction. Binary fission reproduction. Okay, clear है? Fission means division, binary means 2. कहीं भी हो बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स. ओके, नाउ लेट्स अनदर एग्जांपल दैट इज द ईस्ट. ओके, इन द ईस्ट द asexual reproduction by the budding process. Okay, budding process is the plants is like this structures. Let's say suppose that these are the yeast. Okay, and after some time birds तो सभी समझते होंगे एक उभार अलग सा आना. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो है बर्डिंग अपीयर हियर अनइक्वल डिवीजन अकर्स. ओके, यहाँ पे अनइक्वल डिविजन्स होंगे, अनइक्वल डिविजन्स होंगे. अनइक्वल डिविजन्स होने के बाद क्या होगा कि इस तरीके का जो है, इस तरीके से एक जो है बर्ड्स इसमें आएंगे, इस तरीके से इसमें बर्ड्स जनरेट होंगे. आफ्टर दैट these birds are detached out from the parents body. These are the parents body. Parents body. These are the parents body, and from the parents body, body is generated, and these birds are detached out from the parents body, and after that these birds comes in the soils and it germinate and formed a new yeast. Okay, now here in the yeast the asexual reproduction by the budding process. Okay, by the budding process. तो हमने दो तरह का यहाँ पे अभी asexual reproduction देखा है. पहला देखा बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन, दूसरा देखा बर्डिंग. ओके, नाउ लेट्स सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं. हाइड्रा हमने देखा कि हाइड्रा और जो ईस्ट है उसमें बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शंस होते हैं, और जो अमीबा है उसमें बाइनरी फिजन रिप्रोडक्शन होते हैं. ज़्यादातर जो जितने प्रोटेस्टा और मोनेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो पता ही होगा, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो हम यहाँ पे बात करें मोनेरा और प्रोटेस्टा की. पहले तो जो मोनेरा और प्रोटेस्टा है इसमें जो मोस्टली जो रिप्रोडक्शंस होते हैं वे डिवाइडेड बाय सेल डिवीजन. ओके, एंड गिव राइज टू द यंग वन. जो जितने भी प्रोटेस्टा और मोनेरन्स होते हैं इसमें क्या होता है कि जो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न होने के कारण जो पेरेंट्स हैं वो डिवाइडेड हो जाते हैं इनटू 2 में, और इस तरीके से 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो बढ़ते जाते हैं. इनका जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन है इनकी संख्या बढ़ती जाती है. तो 1 से ये 2 हो जाते हैं. तो जितने भी प्रोटेस्टा और मोनेरन्स हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन. ओके, तो मोनेरन्स एंड प्रोटेस्टन में कैसे होता है, सेल डिवीजन से होता है. ओके, नाउ इसके बाद आता है फंजाई. फंजाई एंड एल्गी. इसमें स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं. स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है. The fungi and algae having the special asexual reproductive structure through which they reproduce the young one. Now let's see the which structures is present
in the fungi and algae, the special structure that is the zoospore, which is the microscopic motile structures. Zoospore, which is microscopic structure, motile, microscopic motile structure. Okay. Now another is हम लोग डायग्राम की हेल्प से भी देखेंगे कि जूस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है. Another is the conidia formation in the penicillium. Conidia in the penicillium. Okay. Now gamules in the sponge. अंदर एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं स्पंज. जैसे पॉरीफेरा जो हो गया, ये एनिमल किंगडम्स का जो सबसे पहला जो है वो है प्रोटोजोआ के बाद जो फाइलम्स आते हैं पॉरीफेरा. पॉरीफेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें भी एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एंड इट इज थ्रू विच द गैम्यूल्स फॉर्मेशन इन द स्पंज. Okay, these are the various examples of the asexual reproduction. Now zoospore is like that. जूस्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो क्लैमिडोमोनास में होता है. ये भी चीज़ें यहाँ पे मैं तो ये रिप्रेजेंट कर दूँ, क्लैमिडोमोनास में होता है. जो भी हमने इतनी चीज़ें जितने भी हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द नीट एग्जाम्स. Okay, now let's see the zoospore. The structure is how formed. It's a pouch-like structure in which biflagellated zoospore structures are biflagellated, in which the two flagella are present, which is a motile structure. Okay, now here like this, so many zoospores are, and finally when zoospore become mature, then it ruptured these sac-like structures, and these zoospore, these are the zoospore, and it comes out from these sac like this, and it become free, and it having flagella present, so that's why it move, it is motile structure, and it move and finally it attached from the surface, and it grows and grow into an organisms. Okay, तो इस तरीके से जो जूस्पोर्स है, जूस्पोर इस तरीके से होते हैं, और जो है जब मैच्योर होने के बाद ये सेक्स से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद जो है जो क्लैमिडोमोनास है उससे बाहर आने के बाद क्या होता है कि ये अपना फ्री हो जाता है, मोटाइल है, मूव कर सकता है, कहीं पे भी घूमता है, घूमते घूमते जो है ये फिर अपना एक जो क्लैमिडोमोनास है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है. अनदर है कनेडिया जो पेनिसिलियम में होता है. तो कनेडिया फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी देख लेते हैं हम लोग. इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, इस तरह से कोनिडिया फॉर्मेशन होता है. इस तरीके से कोनिडिया फॉर्मेशन होता है. तो ये हो गया कोनिडिया. Like this asexual reproduction takes place inside the organisms. Okay, asexual reproduction mostly occur in the single cell organism. ये जो ज़्यादातर जो asexual reproductions होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है. हमने अभी जितने भी एग्जाम्पल की बात की है, ये जो है यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, यहाँ पे एनिमल्स की ज़्यादातर बात हुई है. अब आते हैं प्लांट्स में. ओके, तो यहाँ पे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in the plant, it is in the term of asexual the vegetative reproduction term is used in the place of the asexual reproduction. Okay, in the plants. Now let's see the vegetative
reproduction, vegetative reproduction. Okay. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखते हैं, वैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लेस पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं इन प्लांट्स. ओके, प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, बहुत सारे यूनिट्स है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं. तो बहुत सारे यूनिट्स हैं, हम उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से यूनिट्स हैं. तो इसमें जैसे कि रनर है, राइजोम है, शकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है, बल्बील है. These are the units of the vegetative reproduction. Okay, through which the plants, the lower plants, give rise to the new offspring, the new organisms. Okay, जो plants होते हैं उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट वहाँ पे एसेक्सुअल की टर्म में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसके थ्रू जो है और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है. जैसे कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे देखा, वैनरी फिजन रिप्रोडक्शन देखा, बडिंग देखा, जूस स्पोर देखा, कोनिडिया देखा, तो गैम्यूल्स फॉर्मेशन देखा. तो इसी तरह लाइक सिमिलर वे हेयर इज ऑल्सो. These are the units of the vegetative reproduction: runner, rhizome, suckers, tuber, offset, and bulbine. Now let's see the how their runner. Okay, runner in the grass are reproduced into so many new grasses by the runner. Okay, the rhizome, that is a ginger. Okay, ginger में जो reproductions होते हैं, it is through the rhizome. Okay, पोटैटो में सबसे कॉमन एग्जांपल है पोटैटो. आलू में देखा होगा, बहुत दिन अगर हम आलू को रख देते हैं तो उसमें आइसलेट्स आ जाते हैं. ठीक है, बहुत सारे ग्रीन बर्ड्स की तरह आ जाते हैं. आइस की फॉर्मेशन आइस की तरह लगता है देखने में. तो वो जो होते हैं उसमें ट्यूबर. ठीक है, उसको जितनी भाग में डिवाइड कर देंगे, जहाँ जहाँ पे वो ग्रीन वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा बर्ड्स निकला होगा, वो जो पोटैटो है, जहाँ जहाँ उसको कटिंग करके हम उसको क्रॉप कर देंगे, वहाँ से वो पोटैटो हो जाएगा. नेक्स्ट आता है ऑफसेट. ऑफसेट जो है वो होता है ऑफसेट थ्रू द ऑफसेट वाटर हाइसिंथ रिप्रोड्यूस बाय द ऑफसेट. ओके, वाटर हाइसिंथ. बल्बिल इन द एगेव. एगेव में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू विच द बल्बिल. ओके, तो नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चंस और आते हैं नीट में, ये तो आपका हो गया कि कैसे होता है, किस चीज में किसके द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये क्लियर हो गया. तो यहाँ पे जो वाटर हाइसिंथ है, इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ द बंगाल, यानी बंगाल का आतंक बोला जाता है इसे, टेरर ऑफ बंगाल होते हैं. तो जितना भी हमने चीजें बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दी नीट एंड द बोर्ड ऑल्सो. ओके, ये बिल्कुल बेसिक्स जो है एनसीईआरटी ही पूछा जाता है नीट में, बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं होता है. एक आध क्वेश्चंस होता है, तो आप अगर 80 क्वेश्चन बना पाते हैं, अगर 20 क्वेश्चन नहीं भी बना पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर 20 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में 80 नहीं बना पाते हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है. इसलिए आप लोग पूरा फोकस एनसीईआरटी पे करके रखिए कि आपकी एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाए. अगर एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि दूसरे बुक्स आप मत पढ़ें, लेकिन पहले एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दें. एनसीईआरटी अगर आपकी अच्छे से कमांड हो जाती है, देन यू गो फॉर न्यू बुक्स एंड अनदर ऑथर्स बुक्स. ओके, नाउ आज के लिए इतना ही. इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द सेम चैप्टर, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म. Okay, if you have any problem, then you comment it. Okay, you can ask me any questions regarding the needs.